السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں للکار 2 قسط نمبر 2۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سردی جوبن پر تھی مگر آج کل دھوپ نکل رہی تھی، اس لیے موسم بڑا خوشگوار تھا۔ جب یخبستہ ہوا اور چمکیلی دھوپ کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک عجیب سا پرلطف لمس ہر ذی نفس محسوس کرتا ہے۔ میں اندرون شہر عمران کے کرائے کے گھر میں موجود تھا۔ ہم چھت پر بیٹھے تھے اور دودھ جلیبی کھا رہے تھے۔ یہ دعوت شیراز عمران یعنی عمران جونیئر کی طرف سے تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج اس کی والدہ کی سالگرہ ہے۔ عمران نے اب تک جو معلومات مجھے دی تھی ان کے مطابق وہ انڈیا کے شہر جھانسی میں رہتی تھی۔ عمران دانش کی وصیت کے مطابق انہوں نے چند سال بعد شادی کر لی تھی۔ ایک شریف النفس ڈاکٹر عمران کا ستیلا باپ تھا۔ ان کی اولاد نہیں تھی مگر وہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ عمران دودھ جلیبی کے فوائد بیان کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ دودھ میں جلیبی ملا کر کھانے کا آئیڈیا سکندر اعظم قدیم عراق سے لے کر آیا تھا اور بہادر شاہ ظفر نے سکندر اعظم سے باقاعدہ درخواست کر کے اس کی ترکیب حاصل کی تھی۔ اس کی یہ لفظنی جاری تھی جب ایک نوجوان ہانپتا ہوا چھت پر پہنچا۔ ہیرو بھائی جلدی کریں، حسنات صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، شاید دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ حسنات صاحب کا نام سن کر عمران فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ چاچو جی آؤ ذرا، اس نے مجھ سے کہا اور بازو پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ ہم تیزی سے سیڑھیاں اترتے اور تیز رفتاری سے کوئی 1 منٹ تک پیدل چل کر ایک 6 منزلہ مکان میں پہنچ گئے۔ یہ اندرون شہر ہونے کے باوجود نئی تعمیر کا گھر تھا۔ ہم ایک کشادہ کمرے میں پہنچے تو 20-22 سال کی ایک لڑکی بے قراری سے ایک بوڑھے شخص کی ہتھیلیوں کا مساج کر رہی تھی۔ 55-60 سال کا یہ شخص بستر پر چت لیٹا تھا، آنکھیں بند تھی اور وہ کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ ویل چیئر پر ایک دبلا پتلا نوجوان بوڑھے کے قریب موجود تھا اور اس کے منہ میں کوئی دوائی ٹپکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے اسے منع کیا۔ بوڑھے کی نیم سفید داڑھی مسلسل حرکت میں تھی۔ وہ غشی کی حالت میں بول رہا تھا، میں نے کہا تھا نا وہ آئے گا، میں نے کہا تھا نا، یا اللہ رحم کر، یا اللہ ہم پر رحم کر۔ نوجوان نے اشکبار لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے ہوش میں آگئے ہیں۔ کچھ دیر کی تو یہی لگا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ مزید 1-2 منٹ گزرے تو حسنات صاحب نے آنکھیں کھول دی۔ ان کے لب اب بھی بڑبڑانے والے انداز میں بے ساختہ ہلتے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں جیسے ایک گہرا خوف نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسا ہی خوف مجھے معذور لڑکے اور لڑکی کے چہرے پر بھی نظر آیا۔ لڑکی اچھے نین نقش کی تھی، چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو آنچل درست کرتے ہوئے جلدی سے اندر چلی گئی۔ ہم نے حسنات صاحب کو ٹیک لگوا کر نیم دراز کر دیا۔ اسی دوران میں 2 پڑوسی عورتیں بھی آ گئی۔ نوجوان نے لڑکی کو آواز دی، صوفیہ آ جاؤ، ابو کے پاس بیٹھو۔ پھر وہ ہمیں لے کر گھر کے مختصر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکی کا نام راشد ہے، صوفیہ اس کی بہن ہے۔ یہ گھر ان لوگوں کا اپنا تھا۔ گھر میں آرائشی اشیاء بھی نظر آ رہی تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر راشد باقاعدہ آنسو بہانے لگا اور بولا، عمران بھائی، ابو کی یہ حالت اس کمانڈو کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسے میں چھوٹ جائے گا۔ کمانڈو، یہ کون ذات شریف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راشد کو جیسا احساس ہوا کہ اس نے بات درمیان میں سے شروع کر دی ہے، آنسو پوچھ کر بولا، نام تو اس کا شاہنواز ہے لیکن کمانڈو کے نام سے مشہور ہے۔ بڑا سخت بندہ ہے عمران بھائی، باقاعدہ باکسر بھی رہا ہے۔ اگر سچ پوچھے تو ابو کراچی سے یہاں لاہور میں شفٹ بھی اسی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اس نے صوفیہ، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بہرحال بات کچھ نہ کچھ ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ شاید ایک کمانڈو نامی بندہ راشد کی بہن کے در پہ تھا۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ بندہ کہاں ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ 4 دن پہلے میں پتہ چلا تھا کہ اس نے سزا کے خلاف کوئی اپیل کر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ 1.5 سال پہلے ہی چھوٹ گیا۔ وہ لیاری میں آ گیا ہے۔ اسی دن سے ابو کو پریشانی تھی کہ وہ یہاں لاہور چلا آئے گا اور آج یہی ہوا۔ ابو کے ایک دوست حفیظ صاحب نے اسے مین روڈ کے ایک ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسی علاقے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی طرح ہماری یہاں رہائش کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتا کہ؟ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے، پھر ذرا سنبھل کر بولا، کیا پتا وہ آج رات ہم پر چڑھ دوڑے۔ راشد کی آنکھوں میں پھر آنسو تیر گئے۔ اس کو جیل کیسے ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ لیاری کی ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام تھا اس پر، راشد نے جواب دیا۔ اسی اثنا میں ایک اور ادھر عمر شخص کی آواز بھی باہر سے سنائی دینے لگی۔ راشد نے کہا، میرا خیال ہے ابو کے دوست انکل حفیظ آئے ہیں، صوفیہ نے ان کو بھی فون کر دیا تھا۔ راشد باہر چلا گیا۔ عمران کھوپڑی سے ہلا کر بولا، مجھے جلیبی کے آگے پیچھے کی کبھی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی کبھی یہ سمجھ آئی کہ جب کبھی جلیبی کھانے بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا ہے۔ تم تاریخ کا حلیہ بگاڑو گے تو اسی طرح ہوگا۔ سکندر جلیبی کا مجد نہیں تھا، وہ عراق سے نہیں یونان سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے پیدا ہونے سے 2-2.5 ہزار سال پہلے وہ فوت بھی ہو چکا تھا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے چاچو، ویسے بھی ہم یہاں تاریخ درست کرنے نہیں آئے۔ یہ کمانڈو والا معاملہ کافی سیریس لگتا ہے۔
इसी दौरान में हसनात साहिब का उधेड़ उम्र दोस्त हफीज शाह भी ड्राइंग रूम में चला गया। पता चला कि हसनात साहिब की तरह वो भी 4-5 साल पहले तक कराची का रहायशी था, मगर फिर अमन व अमान की सूरत हाल से बेजार होकर लाहौर शिफ्ट हो गया। अब वो भी हसनात साहिब की तरह यहाँ एक क्राकरी स्टोर चला रहा था। हफीज शाह अपने दोस्त और उनके अहले खाना की परेशानी पर तनाव की कैफियत में था। बातों से पता चला कि वो भी कमांडो को अच्छी तरह जानता है। शायद वो राशिद के सामने खुलकर बात नहीं करना चाहता था, इसने राशिद को बाप की तीमारदारी के लिए बाहर भेज दिया। तब इमरान से मुखातिब होकर राजदारी के अंदाज में बोला, शायद राशिद ने आप दोनों को खुलकर नहीं बताया, ये कमांडो बड़ा जालिम बंदा है। आधा शहर इसके नाम से कांपता था और अब भी कांपता होगा। मेरे ख्याल में तो सरकार की तरफ से इसके साथ रायती हुई है। ऐसे बेरहम बदमाश को सरेआम फांसी लगा देना चाहिए। लियारी और इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत थी इसकी। मशहूर था कि लड़ाई में 3-4 बंदों के हाथ पांव ये अकेला तोड़ लेता है। जेल कैसे गया ये? इमरान ने हफीज शाह से भी यही सवाल पूछा। कोई एक दफा थोड़ी गया है, जेल हवालात के चक्कर तो लगाता ही रहता है। आखिरी वारदात में इसने किसी शमसा नामी लड़की से की थी। पहले उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देता रहा, फिर उठाकर ले गया। खबीस ने इसे कई दिन अपने कब्जे में रखा। जब वो वापस आई तो उसका सर मुड़ा हुआ था, भवें साफ थी, जिस पर तशद्दुद के निशान थे। बाद में केस चला और 5 साल की सजा हुई। अब पता नहीं कैसे 3-3.5 साल में छूट गया है। हसनात साहिब से इसकी क्या दुश्मनी है? मैंने इसे कुरेदा। हसनात साहिब से नहीं समझे कि बेटी सूफिया के साथ है। बदबख्त हाथ धोकर इस शरीफ बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो इसको आते जाते तंग करता रहा, फिर बेचारी का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। बात बढ़ गई तो हसनात कराची छोड़कर यहाँ चला आया। इन्हीं दिनों ये खबीस शम्स वाले मामले में भी गिरफ्तार हो गया। कहते हैं कि कोई बॉक्सर वगैरह भी रहा है। हाँ, पहले खेलता रहा है। एक दफा तो सुना था कि किसी बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत की तरफ से मलेशिया जा रहा था, मगर फिर बदमाशियों और हरामजदगियों में पड़कर जेल चला गया। लेकिन मारामारी कभी छोड़ी नहीं इसने। किसी मलेशियन के साथ मिलकर कराची में बॉक्सिंग का एक बड़ा क्लब भी चलाता रहा है। वो मलेशियन भी तो एक नंबर का बदमाश था। इसी दौरान में राशिद कमरे में वापस आ गया। हफीज पाशा ने मौजू बदलते हुए कहा, मैंने तो हसनात को भी यही मशवरा दिया कि फौरन से पहले पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। अगर वो यहाँ लाहौर पहुंच गया तो चंद घंटों से ज्यादा निचला नहीं बैठेगा, किसी भी वक्त यहाँ आ धमकेगा। राशिद ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अब्बू पुलिस को इन्वॉल्व करने से भी डरते हैं। उनका ख्याल है कि ये बहुत बदनामी वाली बात हो जाएगी। वहाँ कराची में तो यही कुछ हुआ था। वो कह रहे हैं कि घर को ताला लगाकर कुछ दिनों के लिए कहीं निकल जाते हैं। इससे क्या होगा? मैंने कहा, क्या वो आप लोगों का पीछा हमेशा के लिए छोड़ जाएगा? वैसे भी किसी बदमाश के खौफ से अपने घर को छोड़कर जाना कोई मुनासिब बात नहीं। तो फिर क्या करें? राशिद ने रूहान से अंदाज में पूछा। पुलिस को इत्तला दी जाए या फिर खुद उस शख्स के पास पहुंचकर इससे बात की जाए, पूछा जाए कि वो क्या चाहता है, क्या इरादे हैं इसके। राशिद का रंग जर्द हो गया। नहीं जी, आप इसे जानते नहीं, इसे इस तरह की बात कर रहे हैं। इतने में राशिद के मोबाइल फोन पर कॉल आ गई। ये कराची से इसकी किसी करीबी दोस्त की वीडियो कॉल थी। इसने भी राशिद को यही इत्तला दी कि शाहनवाज कमांडो जेल से रिहा हो गया है और लाहौर पहुंच गया है। इसको जानने वाले कहते हैं कि हसनात साहिब की फैमिली के बारे में इसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये फोन कॉल सुनने के बाद राशिद की हालत मजीद पतली नजर आने लगी। व्हील चेयर पर बैठा हुआ बिल्कुल मिनी सा लग रहा था। इसकी एक टांग घुटने के ऊपर से कटी हुई थी। यकीनन ये किसी पुराने हादसे का नतीजा था। वो इसकी दूसरी टांग सलामत थी, मगर अंदाजा होता था कि वो भी ठीक से काम नहीं करती। इसे कराची से यहाँ कॉल करने वाले दोस्त ने डायरेक्ट बात नहीं की थी, वरना इसके कहने का मतलब यही था कि वो बदमाश सूफे की इज्जत के दर पे है और जेल से छूटकर सीधा इसकी तरफ ही आया है। कॉल करने वाले ने इस दोस्त का लबो लेजा बता रहा था कि वो भी इस कमांडो नामी बदमाश की दहशत के असर में है। अब पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद पड़ रहा था कि 3-4 साल पहले मैंने कराची के किसी ऐसे बदमाश के बारे में सुना था जो जाना पहचाना बॉक्सर भी था। इंटरनेशनल बॉक्सर बनते बनते वो पक्का गुंडा बन गया था और फिर वो गिरफ्तार हो गया था। इमरान ने हसनात साहिब के दिल नंबर दोस्त हफीज से पूछा, आपने तो आज से किसी होटल में निकलते देखा है? हफीज शाह ने होटल का नाम बताया और फिर कहने लगा, देखो इमरान, हमें पता है कि तुम हर मुश्किल में हाथ डालने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि इससे मिलकर तुम इसे किसी तरह दबा लोगे या यहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दोगे, तो ये गलत फहमी दिल से निकाल दो। वो बिल्कुल ओ टाइप का बंदा है। मैं ये बात कोई मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन कह रहा हूँ। वो 3-4 बंदों के हाथ पांव तोड़कर इन्हें 2 मिनट में जमीन पर लिटा सकता है। राशिद बोला, लियारी में वो हमारे मोहल्ले का ही था। शुरू से मैं तमाशे लगाता रहता था। इसका चैलेंज था कि कोई आर्म रेसलिंग में दोनों हाथ भी इस्तेमाल करे तो इसका बाजू नीचे नहीं लगा सकता, और सच में ऐसा ही था। वो भरा हुआ पिस्तौल किसी शख्स के कदमों में फेंक देता था और खुद 8-10 फीट दूर खड़ा हो जाता था। इसे चैलेंज करता था कि वो इससे पहले पिस्तौल उठाकर हवाई फायर कर दे, वो इसे अपना पीर उस्ताद मान लेगा। ऐसे बहुत से उल्टे सीधे काम करके वो लोगों पर दहशत डालता था और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी होता था। हफीज शाह साहिब ने बताया, फितरतन खबीस शख्स है और मुझे तो लगता है कि जेल से निकलकर और भी खतरनाक हो गया होगा। सुनी सुनाई बातें तो बहुत हैं, 1-2 मरतबा तो
میں نے خود بھی اس کی بدماشی اور مارٹائی کے سین دیکھے ہیں۔ مرنے مارنے پر عائد زہریلا ناک بن جاتا ہے۔ پولیس کے کچھ پہلوانوں سے بھی اس کی پکی یاریاں ہیں۔ عمران نے کہا اگر آپ مجھے ڈرنا چاہتے ہیں تو میں واقعی بہت ڈر گیا ہوں۔ مجھ پر کپ کپی بلکہ کپ کپا طاری ہو گیا ہے۔ مزید ثبوت چاہیے تو تھوڑا سا انتظار فرمائیے، میری پینٹ بس گیلی ہونے ہی والی ہے۔ راشد اور حفیظہ ہونکو کی طرح ہمارا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا حفیظ صاحب، عمران مذاق کر رہا ہے۔ بہرحال ہم ایک بار آپ کے اس گینگ کمانڈو سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ہمارے ملنے سے حسنات صاحب یا ان کی فیملی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ملیں گے، آپ ہمیں بس اس کے ٹھکانے تک لے چلیں۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد ہم نے راشد اور حفیظہ کو قائل کر لیا۔ جیسا سنا تھا شاہنواز کمانڈو کو اس سے بڑھ کر پایا۔ اس سے ہماری ملاقات راوی روڈ کے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ہوئی۔ وہ ہوٹل کی لوبی میں بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، نہایت مضبوط ورزشی جسم، ناک پھولی ہوئی، رنگ گندمی، تنومند گردن اور تھوڑی بھر زخم کے 2 پرانے نشانات۔ وہ سخت سردی میں بھی عام شرٹ اور جین کی پتلون پہنے بیٹھا تھا۔ عمر 28 سال سے اوپر رہی ہوگی۔ ارد گرد موجود لوگوں کی نگاہیں آپ و آپ اس کی جانب اٹھ جاتی تھی۔ اس کے کرخ چہرے کی چمک اور تازگی دیکھ کر ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ 3.5 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے۔ عمران فضیانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، جھک کر بڑی عقیدت سے ہاتھ ملا اور بولا، ایک دفعہ کراچی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ لیاری کے ڈاک خانے والی سڑک پر بندر کا تماشا دکھا رہے تھے۔ مخاطب کا تھوبڑا ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کڑی نظروں سے عمران کو دیکھا۔ بندر کا تماشا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ جناب، آپ اس گنڈے کو جس طرف ہینڈل لگا رہے تھے وہ بندر کا تماشا ہی تھا۔ وہ آپ کی چوٹیں کھا کر 2 فٹ اوپر اچھل رہا تھا۔ اس تشبیہ پر کمانڈو نام کی اس خونخوار شخص نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کب کی بات کر رہے ہو، میری یاداشت میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ بادشاہ ہو، یاداشت اس بندے کی خراب ہونی چاہیے تھی جس کی کھوپڑی میں آپ کے مکوں سے چاند روشن ہوئے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں، مارنے کے بعد آپ نے اس کو تمباکو والا میٹھا پان بھی کھلایا تھا۔ تمباکو والا میٹھا پان؟ ہاں جی، اس بات پر تو اس جغد پان فروش سے آپ کی مارا ماری ہوئی تھی۔ آپ نے اسے میٹھا پان کہا تھا۔ اس کھوتے نے تمباکو بھی ڈال دیا، پھر ویسا ہی پان آپ نے اس سے بنوا کر اس کی ناک میں گھسیڑا تھا، یعنی ناک کو پان چھپایا تھا اس کو۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص برہم ہو کر کچھ کہتا، عمران نے جلدی سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، اس وقت ہی میرے انکل بھی میرے ساتھ تھے۔ آپ کی طرح یہ بھی بڑے پائے کے باکسر ہیں۔ ٹھیک ٹھاک نام ہے ان کا۔ باکسنگ کے ذکر پر وہ گرانڈیر شخص تھوڑا سا چونکا اور غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ میری عمر کا لحاظ کیے بغیر نخوت سے بولا، تابش۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ کہاں کھیلتے رہے ہو؟ کسے سیکھا بھی یا پیدائشی چیمپئن تھے؟ اس کے آخری فکر نے میرے جسم میں پھریری دوڑا دی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کس سے سیکھا اور کیا کیا سیکھا؟ کون تھا میرا استاد؟ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ عظیم فائٹر بروندا جیکی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا۔ آہ، بروندا جیکی اور اس کے بے مثل فلسفہ! کئی یادوں نے ایک دم ذہن میں یلغار کر دی۔ کمانڈو پرغرور انداز میں میری جانب دیکھ رہا تھا، یقیناً اپنی جوانی پر اور اپنے ہنر پر گھمنڈ کر رہا ہوگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے سامنے بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ہم ابھی کھڑے تھے۔ عمران نے کہا کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کہ اور ہٹا کٹا شخص اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ یہ بھی اس کا کوئی بدماش ساتھی تھا۔ بڑی کیا بات ہے، تم کیا کہنا مانگتا ہے شاہنواز صاحب سے؟ وہ درست لہجے میں بولا۔ کمانڈو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور پر نخوت انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کی چر زبانی کام آئی اور وہ اس کمانڈو بندے کے ساتھ گفتگو کو طول دیتا چلا گیا۔ اس گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص واقعتاً اپنے اندر ایک نیلی آگ چھپائے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے آپ پر گھمنڈ بھی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ باکسنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کچھ اور اوور ہو جاتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے۔ اس کا خیال یہی تھا کہ اگر وہ اپنے کیریئر کے عروج پر بدقسمتی سے جیل نہ چلا جاتا تو اس وقت شاید مائک ٹائسن کے جوڑ کا فائٹر ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ مائک ٹائسن سے بھی آگے چلے جاتے۔ طور اتوار تو آپ کے بھی بالکل ویسے ہی ہیں، عمران نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عمران کو گھورا۔ وہ عام سے انداز میں گویا ہوا۔ چیمپئن مائک ٹائسن کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹی تھی۔ ارادے تو آپ کے بھی کافی نیک ہیں۔ شاہنواز کمانڈو کے تھوبڑے پر خون کی سرخی دوڑ گئی۔ یقیناً اسے عمران سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ عمران کا گریبان پکڑ لے گا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ کچھ دیر تک کھا جانے والی نظروں کے انداز میں ہم دونوں کو دیکھتا رہا، تب زہری ناک کی طرف پکارا، کون ہو تم؟ کیسے آئے ہو میرے پاس؟ اس کے سوال کا جواب میں نے دیا اور پوری وضاحت سے دیا۔ 4-5 منٹ کے اندر میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ ساری بات کی اور اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ حسنات صاحب اور صفحے کے ذکر نے کمانڈو کے چہرے پر ہی جان پیدا کر دیا۔
इसके साथ ही से ये अंदाज़ा भी हो गया था कि जो बंदे इसके साथ इतने इत्मीनान से इतनी अहम बात कर रहे हैं वो भी मामूली नहीं है। मेरी बात खत्म हुई तो शाहनवाज कमांडो की आंखों में भूखे शिकरे जैसी चमक नजर आने लगी। वो बोला, तो सूफिया के कुछ लगते बनकर आए हो मेरे सामने, जबरदस्त, बहुत खूब। तो अब लगे हाथों ये भी बता दो कि क्या उखाड़ोगे मेरा और किस तरह। गर्दन एक जानिब टेढ़ी करके वो खतरनाक अंदाज में बोल रहा था जैसे इसने सूफिया के बजाय एक भरा हुआ पिस्तौल मेरे सामने फेंक दिया हो और बाजुबाने खामोशी कह रहा हो, चलो आओ मेरी पकड़ से बचाकर दिखाओ इसे। मैंने इस बंदे के बारे में अब तक जो अंदाजा लगाया था वो यही था कि वो परले दर्जे का खुद पसंद है। सबसे ज्यादा गुरूर इसे अपनी जिस्मानी ताकत और बेखौफी पर ही था। ऐसे लोगों को इंसानियत के दायरे में लाने का इससे बेहतर तरीका नहीं होता कि इन्हें इनके घमंड को शिकस्त दी जाए। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं और इमरान इसे एक बार सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे तो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर इसकी गुरूर की अकड़ी हुई गर्दन झुका दी जाए तो ये तुरंत अर्श से फर्श पर आ जाएगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस लड़की को मेरी छोटी बहन समझ लो या बेटी समझ लो या किसी भी प्यारे रिश्ते का नाम दे लो, लेकिन इसकी तरफ आंख उठाना तो दूर की बात है। तुमने इनके बारे में सोचा भी तो हम तुम्हारी सांसें खींच लेंगे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गालिबन उसे यकीन नहीं था कि उसके बारे में जानकारी रखने वाला कोई शख्स इस लहजे में इससे बात कर सकता है। फिर इसकी हैरत बतदरीज एक गजबनाक तासुर में ढल गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, पहले मुझे ठीक ठाक बताओ कि वो लगती क्या है तुम्हारी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भांजी है मेरी। इसने होटल के चमकीले फर्श पर थूका और पुकारा, लगता है कोई बहुत बड़ी बदबख्ती तुम्हारा पीछा कर रही थी तो मेरे सामने आ गए हो, या हो सकता है कि बद्दुआ हो किसी की। यही शक तुम्हारे बारे में मुझे हो रहा है, मैंने इत्मीनान से कहा, और मुझे भी इमरान ने लुकमा दिया। इमरान को नजरअंदाज करते हुए इसने एक बार फिर मुझे सरतपा घूरा और सरसराती आवाज में कहा, अंकल तेरी उम्र नहीं ऐसे फड्डों में पड़ने की, जा कहीं धूप में बैठकर अखबार पढ़, ये किसी पोती के साथ खस्सी बाग में इंजॉय कर। ऐमें कोई हड्डी कड़क हो गई तो इस उम्र में जुड़कर नहीं दे पाएगी। इमरान ने कहा, मैंने भी चाचू जानी को यही मशवरा दिया था। मैंने कहा था ये उम्र लड़ाई करने की नहीं, लड़ाई छुड़ाने की होती है। वैसे भी जवान सांड से जवान चीता ही लड़े तो अच्छा होता है। शाहनवाज कमांडो की खूंखार निगाह एक लम्हे के लिए इमरान के चेहरे की तरफ उठी, जैसे इसने समझने की कोशिश की कि सांड किसको कहा गया और चीता किसको। फिर इमरान से नायब सर्द लहजे में मुखातिब हुआ, तुम अपने चाचू समेत आ जाओ ना, अभी 2 मिनट में दोनों की पतलूनें उतार दी तो नाम बदल देना। इसके बाद दोनों की तशरीफात पर जो जूते मारूंगा वो अलहदा से होंगे, मारूंगा 20 और गिनूंगा 10। इसके लहजे में भस्म कर देने वाली आग थी। चंद लम्हों के लिए लगा कि वो भी हम पर झपट पड़ेगा। मैंने इसे धीरज रखने का कहा और मशवरा दिया कि अगर बात मारामारी पर आ ही गई है तो फिर यहाँ फड्डा डालकर पुलिस को दावत न दी जाए, बल्कि इत्मीनान से बात कर ली जाए कि क्या करना है। कोई रिश्ता देना है मुझे, जो इत्मीनान से बात करनी है तुमने। वो खतरनाक अंदाज में कुर्सी से खड़ा हुआ। इस मौका पर इमरान ने फिर चरफुजानी का मुजाहरा करते हुए संभाला और दोबारा बिठा दिया। इर्द गिर्द मौजूद लोग तशवीश नजरों से हमें देख रहे थे। कमांडो के 2 साथी भी आसपास मौजूद थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों मुसल्ला थे। अगले 10-15 मिनट नतीजा खेज साबित हुए। मैंने बेहद संजीदा लहजे में शाहनवाज उर्फ कमांडो से कहा, अगर बात इस तरफ चल निकले तो चलो कुछ शराइत तय कर लेते हैं। मैं तुमसे दुबदू लड़ने को तैयार हूँ। मैं इस बात पर नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती एक शरीफ लड़की को अपने घर में डालना चाह रहे हो। तुम इस बात पर न जाओ कि तुम्हारी जवानी को एक बड़ी उम्र का बंदा बॉक्सिंग रिंग में चैलेंज कर रहा है। हम ये बात करते हैं कि अगर मैं तुम्हारे गुरूर तोड़ दूँ तो तुम बदले में क्या दोगे। तुम क्या देगा अंकल? वो फौरन बोला, मैं अपने हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मुझे इसके इख्तियार हासिल है और मैं ये कर सकता हूँ। जाहिर है कि आखिरी अल्फाज मैंने इसे सिर्फ कायर करने के लिए कहे थे। अब बताओ तुम क्या दोगे? वो जहरीले लहजे में बड़े ठुस्से से बोला, मैं तेरे घुटनों को हाथ लगाकर और तुझे सलाम पेश करके यहाँ से चला जाऊंगा। दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। जोश के आलम में अब इसका चेहरा स्याही माइल हो रहा था और बाजू की मचलें फुलकती महसूस हुई थी। एकदम बड़ा ड्रामाई सा माहौल बन गया था। वहीं बैठे बैठे हमारे और शाहनवाज कमांडो के दरमियान कुछ शराइत तय हो गई। पुलिस के महकमे से बतौर फिजिकल ट्रेनर मुस्लिक होना मेरे लिए खुशगवार तजर्बा साबित हुआ था। मार्शल आर्ट का मजीद तड़का भी मेरी इस मसरूफियत में शामिल था, ये जो मेरी अपनी फिटनेस और सेहत के लिए भी मुफीद थी। बारोंदा जैकी के फलसफे के मुताबिक मैंने खुद को मुसलसल सख्तरीन मुशक्कत और जफाकशी के हवाले कर रखा था। अब ये मुशक्कत में मुशक्कत लगती ही नहीं थी, रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी थी। नए सामीन को यह बताना ज़रूरी है कि बारोंदा जैकी मेरे उस्ताद का नाम था। ड्यूटी से फारिग होकर मैं शाम 8 बजे अंदरूनी शहर इमरान के पास पहुंचा। इमरान इस वक्त हसनात साहिब के घर में ही मौजूद था। वो हसनात साहिब उनकी फैमिली का खौफ काफ़ी हद तक दूर कर चुका था। इसने तफसील तो नहीं बताई, बस इतना कहा था कि हम होटल में जाकर शाहनवाज कमांडो से मिले हैं, इसके साथ अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं। कम अज़ कम इतनी तसल्ली ज़रूर हो गई है
تو 1-2 روز تک اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تسلی تشفی کی اس گفتگو کے دوران میں راشد ویل چیئر پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی معذوری کے بارے میں کچھ جانکاری ملی۔ حسنات صاحب تکیے سے ٹیک لگائے نیند راستے انہوں نے بتایا 4 سال پہلے راشد کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ ان دنوں ہم لوگ کراچی میں تھے۔ گھر کی چھت پر کچھ تعمیر ہو رہی تھی۔ راشد کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گیا۔ دونوں ٹانگوں میں کئی فریکچر ہوئے مگر بائیں پاؤں والا فریکچر آپریشن کے بعد بگڑ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زہر پھیل رہا ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا اب کیا پوزیشن ہے؟ وہ ابدیدہ ہو کر بولے در حقیقت راشد کی ٹانگ 2 دفعہ کاٹی گئی ہے، دوسری مرتبہ گھٹنے کے اوپر سے کٹی۔ یہ آپریشن کو 1.5 سال پہلے لاہور میں ہوا ہے۔ 7-8 ماہ تو خیریت سے گزر گئے لیکن اب پھر زخم میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اب معاملہ زیادہ۔ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا اور بات مکمل نہیں کی۔ راشد بولا اب ڈاکٹر ٹانگ کو بالکل کولے کے پاس سے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کافی مہنگا آپریشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپریشن پاکستان سے باہر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ مدد کرنے والا ہے۔ واجد صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپریشن باہر ہو جائے۔ واجد کا نام میں پہلی بار سن رہا تھا۔ میں نے سوال نظر سے پہلے عمران اور پھر راشد کی طرف دیکھا۔ حسنات صاحب بولے واجد میرے ہونے والے داماد کا نام ہے۔ میرا مطلب ہے صوفیہ کا منگیتر بہت اچھا لڑکا ہے، بے حد خیال رکھنے والا۔ اللہ نے اس کو نوازا بھی بڑا ہے۔ لیدر جیکٹس کا کام کرتا ہے۔ آج کل پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے۔ یا ہوتا تو شاید خود ہی اس کمانڈو والے بکھیڑے کو سنبھال لیتا۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا بہت اچھی طرح آتا ہے واجد بھائی کو۔ راشد نے بھی تائید کی۔ مزید جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ حسنات صاحب کی بیٹی صوفیہ نے ٹیکسٹائل میں کوئی ڈپلوما وغیرہ کر رکھا تھا۔ گھر کے مالی حالات کو سہارا دینے کے اس نے ایک فرم ڈائمنڈ ٹیکسٹائل میں ملازمت کر لی۔ واجد احمد فرم کے مالک کا بیٹا تھا۔ صوفیہ اس کی نگاہوں کو بھائی۔ وہ اس کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہوتے گئے اور پھر طبقاتی فرق کے باوجود واجد نے صوفیہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ راشد اپنے موبائل فون پر واجد کی تصویر دکھائی۔ روشن چہرے، کھڑی ناک اور پتلے پتلے ہونٹوں والا ایک مضبوط اور باہمت شخص لگتا تھا۔ عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اسی دوران میں صوفیہ ٹرے میں چائے لیے ہمارے پاس آ گئی۔ آنچل چہرے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ آدھے چہرے کی دل کا جھلک بھی یہ دکھانے کے لیے کافی تھی کہ اگر اس نے اپنے باس کے دل میں گھر کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا۔ اسی دوران میں عمران کے موبائل پر حسنات صاحب کے دوست حفیشہ کی کال آ گئی۔ وہ تازہ ترین صورتحال کو جاننے کے لیے بے حد بے چین تھے۔ عمران نے بھی تسلی دور بتایا کہ کل کمانڈو سے پھر ہماری ملاقات ہے۔ امید ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسے لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عمران نے مقابلے وغیرہ کی بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتا دیتا تو اسے ایک بچگانہ سوچ کہا جاتا اور شاید سرے سے یقین ہی نہ کیا جاتا۔ یہ ایک مقامی کالج کا سپورٹس کمپلیکس تھا۔ یہاں باکسنگ اور ریسلنگ وغیرہ کے لیے ایک شاندار رنگ بھی موجود تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اس وقت کمپلیکس بالکل ویران تھا۔ میں اور کمانڈو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے صرف ٹراؤزر اور بنیانیں پہن رکھی تھی۔ ہاتھوں میں باکسنگ گلوز تھے۔ تماشائیوں میں عمران کا ایک یار زرعی خان اور 3-4 دیگر دوست شامل تھے۔ اس کے علاوہ کمپلیکس کے 2-3 ملازم بھی تھے۔ فیصلے کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک باکسنگ ریفری کو لے آیا تھا۔ بہرحال کمانڈو کو ہنوز علم نہیں تھا کہ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ کے فزیکل ونگ سے ہے۔ ٹیوب لائٹس میں کمانڈو کا جسم فولاد کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ شیڈو باکسنگ کر کے خود کو گرم کر رہا تھا۔ اس کے موقعوں کی رفتار دیکھ کر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ گھمنڈی ضرور ہے مگر آسان حریف ہرگز نہیں۔ 5 راؤنڈ کا مقابلہ طے ہوا تھا۔ ضرورت پڑنے پر راؤنڈ بڑھائے جا سکتے تھے۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہم دونوں مقابل آئے۔ باکسنگ میں پہلا راؤنڈ کافی خطرناک ہوتا ہے۔ باکسر کے سٹاک پنچ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ پہلے دوسرے راؤنڈ میں ایک سٹاک پنچ ٹھکانے پر لگ جائے تو ناک آؤٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ پہلا راؤنڈ ہم دونوں نے سنبھل کر کھیلا مگر پھر دوسرے راؤنڈ میں میری طرف سے تابڑتوڑ حملے ہوئے۔ وہ یقیناً شاندار باکسر تھا۔ بدماشوں میں نہ پڑتا تو بہت آگے تک جاتا۔ اس کے 1-2 نہایت خطرناک موقعوں سے خود کو بمشکل بچایا۔ دوسری طرف کمانڈو کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بڑی عمر کے جس باکسر کو وہ ترنے والا سمجھ رہا تھا وہ ترنے والا نہیں ہے۔ میری سب سے بڑی طاقت تو میری قوت برداشت تھی۔ برسوں گزر گئے تھے جب باروندہ جیکی نے تکلیف سہنا اور اس پر غالب آنا جیسے میری گھٹی میں ڈال دیا تھا۔ تیسرے راؤنڈ میں جب کمانڈو کا ایک دندان شکن پنچ نے بڑی سہولت سے برداشت کر لیا تو اس کی آنکھوں میں تیش کے ساتھ کچھ حیرت بھی نظر آنے لگی۔ پھر وہ اندھا دھند حملوں پر آ گیا، ساتھ ساتھ وہ زبانی بھی کر رہا تھا۔ اسے اضافی غصے میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ عنقریب وہ کوئی ایسی غلطی کرے گا جو اسے فرش چٹا دے گی۔ عمران باہر سے پکار رہا تھا، چاچو جانی تمہیں مرحومہ چچی کی قسم اسے بتا دو کہ تم کون ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس جگہ مکہ مارو کہ یہ شادی وادی کے قابل ہی نہ رہے۔ تیسرے راؤنڈ کے ختم ہونے کے بعد میں اسٹول پر بیٹھا تو سانسیں درست کر رہا تھا جب لنگا تڑنگا عمران جسٹ لگا کر رنگ میں آ گیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، چاچو جانی تمہارے سر کی قسم مزہ آ گیا۔ اس درمیانی عمر میں بھی تم جیکی چن کے کان کاٹتے ہو۔ میں تو خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ یہ فائٹ دکھانے کے لیے مہدی کو یاد نہیں لایا۔ کیا مطلب؟ سمجھانے والے انداز میں بولا، مہدی یعنی وہی اپنی مہوش حیات فلموں والی۔ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتی تو این ممکن تھا کہ مجھے چھوڑ کر تم پر فدا ہو جاتی۔
मैं बैठे बिठाए रकीब बन जाता अपने चाचू का। अच्छा बकवास बंद करो, ठंडा पानी दो, कुली करनी है। वो मुझे कुली कराते हुए फिर बोला, बंदा तो ये काफ़ी टाइट है, लेकिन लगता है कब ज़्यादा गुस्से में आ गया है, हो सकता है कि फॉल शॉल भी करे। मैं तो कहता हूँ चाचू, अगर फाउल करे ना तो तुम सीधा इसकी हवस गा पर मुक्का मारो, फिनिश ही कर दो ये टेंटना। मैंने इसे धक्का देकर पीछे हटाया और चौथे राउंड के लिए उठ खड़ा हुआ। चौथा राउंड शुरू ही से जरा जोरदार था। राउंड के दूसरे मिनट के शुरू में वही कुछ हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। कमांडो अपना जब्त खो बैठा। इसने बॉक्सिंग लपेट कर एक तरफ रख थी और अन्य भैंसी की तरह सीधी सीधी मेरे सीने पर टक्कर दे मारी। हम गुत्था हो गए। रेफरी धक्का देकर दूर जा गिरा। कमांडो अपने घुटने, कोहनियां, सर सब कुछ इस्तेमाल करने लगा। मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि इस मैदान में मुझे ज्यादा आसानी थी। ये मिक्स मार्शल आर्ट की शक्ल थी जो मेरा असल मैदान था। मैंने 1-1.5 मिनट के अंदर इसे रूह की तरह धनक डाला। मेरे आड़ंगे ने इसे पुश्त के बल गिराया तो मैंने इसे एक फर्शी दाव में जकड़ लिया। कमांडो के मुंह से और नाक से खून जारी हो चुका था। एक आंख सूजकर तकरीबन बंद हो गई थी। फिर देखते ही देखते इसका शदीद नुकसान हो गया। मेरे आर्म लॉक से निकलने की अंधाधुंध कोशिश में इसने अपना बायां बाजू कंधे के ऊपर से तड़वा लिया। इसके बावजूद इसकी सख्त जानी इसे मुजामत पर उकसा रही थी, मगर जब चंद सेकंड के बाद इसकी पूर्ण नखवत गर्दन मेरे बाजू के मोहलक शिकंजे में आई तो इसने बदमाशी के अंदाज को खुदाफिज कहा और शरीफ खिलाड़ियों की तरफ फर्श पर अपना दायां हाथ मार मार कर अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। इमरान और उसके दोस्तों ने नारा हाय तहसीन बुलंद किए। इमरान कमांडो इसी तरह फर्श पर औंधा पड़ा रहा। इसका बायां बाजू कांपता चला जा रहा था। जख्मों से बहने वाला खून रिंग के फर्श पर गुलगारी कर रहा था। इसका झुका हुआ सर देखकर मेरे दिल ने गवाही दी कि आज ये शख्स अपने घुमंड के घोड़े पर से उतर आया है और अब सिद्ध के दिल से अपनी पसपाई भी तस्लीम करेगा। 1-2 मिनट बाद जो कुछ वो कतई गैर मुक्को था। मैं रिंग से नीचे उतरी रहा था कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर 1-2 गाड़ियों रुकने की आवाज़ें आई। चंद सेकंड बाद 7 अफराद गेट कीपर से रुझते हुए हाल के अंदर आ गए। मैंने पहचान लिया। इनमें सबसे आगे 3-piece सूट वाला शख्स था जिसका नाम वाजिद अहमद मालूम हुआ था और जो सूफिया का मंगेतर था। वो गालिबन आज ही बैरून मुल्क से लौटा था और शायद एयरपोर्ट से सीधा यहाँ चला आया था। इसे यहाँ का पता यकीनन होटल में कमांडो ही के किसी साथी से मालूम हुआ था। इसका चेहरा देखते मुझे अंदाजा हुआ कि वो कमांडो के हवाले से सख्त तैश में है। इसने इमरान से चंद फिक्रों का तबादला किया, फिर बिफर कर रिंग में दाखिल हो गया। कमांडो रिंग के अंदर ही दो जानू बैठा था और रेफरी एक दूसरे शख्स के साथ मिलकर इससे टूटे हुए कंधे को एक आर्दी बैंडेज में लपेटने की कोशिश कर रहा था। अचानक वाजिद अहमद कमांडो पर टूट पड़ा। आलिम तैश में चिल्लाते इसने कमांडो को ठोकरों पर रख लिया। मैं दोबारा लपक कर रिंग में दाखिल हो गया। इमरान भी मेरे साथ। इमरान ने पुकार कर कहा, इट इज़ नॉट फेयर वाजिद साहिब, इसका बाजू टूट गया है, हार मान ली है इसने। इस कमीने की तो एक एक हड्डी तोड़ूंगा मैं। इसकी जुर्रत कैसे? वाजिद चिल्लाया और कमांडो को सर के बालों से जकड़ के इसके मुंह पर घोंसे बरसाने लगा। साथ साथ वो गरज रहा था, तुझे कहा था ना। वाजिद के साथ आने वाले 2 तुनमत शख्स इस मारपीट में शामिल हो गए। ये ज्यादती थी। मैंने वाजिद को रोका, ये ठीक नहीं, आप लोग छोड़ दे इसे, फैसला हो गया है। फैसले की ऐसी की तैसी। वाजिद अहमद पुकारा, फैसला तो अब होगा। इस कमांडो बदमाश को जिंदा लाश न बना दे तो नाम नहीं मेरा। इसने एक और तूफानी ठोकर कमांडो के टूटे हुए कंधे पर रसीद की। वो अजियत की शिद्दत से लोटपोट होने लगा। एक सख्त मुकाबले के बाद इसमें इतनी सख्त कहाँ थी कि अपना दिफा कर सकता। मैंने एक बार फिर वाजिद को रोकने की कोशिश की तो इसके एक मुसल्ला साथी ने मुझे भी धक्का दिया। अपने हाथ पीछे हटा लो सर जी, वो गरजा। मेरा दिमाग भी चटक गया। मैंने इसे उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा तो वाजिद अहमद मुझ पर धाड़ने लगा, कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, नीचे उतरो रिंग से, ये हमारा मामला है, हम खुद निपटेंगे। बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर वाजिद अहमद के साथी ने जैकेट के अंदर से पिस्टल भी निकाल लिया। जी तो चाहा कि इस नाकबद अंदेश को पिस्तौल दिखाने का मजा चिखा दूं, मगर इमरान ने मुझे बाजू में जकड़ कर रोक दिया। यही वक्त था जब मैंने 3-4 मजीद अफराद को अंदर दाखिल होते देखा। इनमें 2 शलवार कमीज में कोट वाले हट्टे कट्टे अफराद को मैंने फौरन पहचान लिया और ठिठक गया। इनमें से एक हमारे SP चीमा साहिब थे। वो सीधा हमारी ही तरफ आए। तब तक वाजिद ने मुझे घूरना बंद नहीं किया था। क्या हुआ वाजिद साहिब? हमारे चीमा साहिब ने वाजिद को बड़े दोस्ताना लहजे में मुखातिब किया। 2 मिनट के अंदर अंदर वाज़ेह हो गया कि चीमा साहिब यहाँ वाजिद अहमद के मददगार बनकर आए हैं। उन्होंने भी कमांडो के बारे में वही जुबान बोलना शुरू कर दी थी जो इससे पहले वाजिद अहमद बोल रहा था। चीमा साहिब ने मुझे और इमरान को वहाँ से जाने की हिदायत की। इनकी बात मानने के सिवा चारा नहीं था। मैं और इमरान बाहर आ गए। कमांडो अभी तक रिंग में चित पड़ा था और इसे ठुड्डे वगैरह मारे जा रहे थे। हॉल से बाहर आकर हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। वाजिद अहमद का रवैया देखकर सख्त मायूसी हुई थी। वो बड़ी कमजरफी का मुजाहरा कर रहा था। एक गिरे हुए शख्स को ज़दोकोब करके चैंपियन बनने की कोशिश में था वो। तब हमने एक और मंजर देखा जिससे दिलो दिमाग में कुछ और चिंगारियां भर दी। वाजिद अहमद के बंदे कमांडो को ठंडे फर्श पर बाकायदा घसीटते एक लग्जरी स्टेशन वैगन की तरफ ला रहे थे। इसकी बुनियाद फट चुकी थी, जिस्म लहूलुहान था। वो नीम बेहोश लगता था। इसे वेन में फेंका गया। फिर सब गाड़ियां एक के बाद दीगरे वहाँ से रुखसत हो गई। क्या ख्याल है, पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे? इमरान ने पूछा। पता नहीं, चीमा साहिब की अलहदा गाड़ी यहाँ से निकले हैं।
लग तो ये रहा कि वाजिद अहमद पहले कमांडो को जानता है, शायद वही रकाबत का चक्कर ही हो। इमरान ने ख्याल जाहिर किया। इस बारे में तो राशिद और इसके घर वाले ही बता सकते हैं। इमरान ने वही बैठे बैठे हसनात साहिब को फ़ोन किया। उन्होंने यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। फ़ोन का स्पीकर ऑन था। हसनात साहिब की आज़ुर्दा आवाज़ सुनाई दी। हाँ वाजिद बेटा, आज शाम इंग्लैंड से लौटा है। वो सख्त गुस्से में था। मुझे पहले ही डर था कि कोई इस तरह का वाक़या हो जाएगा। इमरान ने कहा, यह आपके होने वाले दामाद साहिब ने कुछ अच्छा नहीं किया। हमने कमांडो के साथ मामला बिल्कुल सेटल कर लिया था। हमारे ख्याल में तो वाजिद के यहाँ आने से खराबी ही हुई है। क्या वाजिद और कमांडो में पहले भी कोई राब्ता हुआ था? मैंने पूछा। मेरे सवाल के जवाब में हसनात साहिब ने नहीं आवाज़ में जो कुछ बताया, इससे पता चला कि कराची में किसी तरह कमांडो को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इस वक्त वो जेल में था। इसने अपने एक दोस्त के जरिए वाजिद को टेलीफोन पर सख्त धमकियाँ दी थी। एक दो मरतबा फ़ोन पर ही गालम गलोच की नौबत भी आई थी। हसनात साहिब जाहिर होने वाले दामाद की साइड ही ले रहे थे, मगर दामाद साहिब ने यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो कुछ किया था वो हमें एक आंख नहीं भाया था। अगले रोज इतवार था। नाश्ते से फारिग होकर मैं दोपहर के वक्त इमरान के घर पहुंच गया। रात वाले वाक़ये की वजह से इसकी शोखी मान पड़ी नजर आई। हम कमांडो और वाजिद अहमद के बारे में ही बात कर रहे थे जब जर्री ने आकर इमरान को इत्तला दी कि एक बुर्कापोश लड़की आपसे मिलने आई है। वो कहते कि आप इससे अकेले में कोई बात करनी है। कहीं ये कमांडो वाला कोई चक्कर ही तो नहीं? इमरान ने दीदे घुमाए। मुझे भी कुछ शक सा हो रहा है। मैं साथ वाले कमरे में चला गया। इमरान ने इस लड़की को अंदर बुलवा लिया। सिया बुर्का में फक्त इसकी आंखें ही नजर आती थी। मैं दरवाजे की बारीक झरी में से देख रहा था। वो मुझसे फकत 10 फीट के फासले पर बैठी थी, लेकिन जब तक वो बोली नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो सूफिया है। इसका पूरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इसने बड़ी धीमी आवाज में अपना तारुफ कराया, फिर सिसकियां लेते हुए कहा, हीरो भाई, आप एक मसीहा की तरह हमारे इलाके में आए हैं। कहते हैं कि आप इससे पहले आपके वालिद थे जो इसी तरह लोगों में घुल मिलकर इनके दुख दर्द बांटते थे और इनकी दुआएं लेते थे। मैं आपसे भी ऐसी उम्मीद लेकर आई। कुछ मजीद तमहीद बांधने के बाद वो बोली, भाई मुझे डर है कि वाजिद इसको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। ये दुश्मनी किसी के लिए अच्छी नहीं। मेरी तरह यकीनन इमरान को भी यही समझा कि वो अपने होने वाले शोहर को किसी संगीन झगड़े से बचाना चाहती है, लेकिन इसकी गुफ्तगू से जो इंकिशाफ हुआ वो शशदर कर देने वाला था। वो अपने होने वाले शोहर से कहीं ज्यादा शाहनवाज उर्फ कमांडो के लिए फिक्रमंद थी। मुझे इमरान के चेहरे पर भी हैरत के आसार नजर आए। वो बोला, आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इस शख्स ने तो आपका जीना हराम कर रखा था। इसकी वजह से आप लोग कराची छोड़कर यहाँ आए। वो सिसकी, भाई आपको पूरी तरह न जानते हुए भी आप पर सगे भाइयों की तरह एतमाद कर रही हूँ। हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, आप मेरा पर्दा रखना। इसने बुर्का के अंदर ही हाथ जोड़ते इमरान ने तसल्ली दी। वो बुरा है, लेकिन इतना बुरा नहीं जितने से समझा जा रहा है। वो रोते हुए बोली। इसका इशारा यकीनन शाहनवाज कमांडो की तरफ था। आप ये किस तरह कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इमरान बोला, कुछ भी है, ये शख्स जराइम पेशा है। एक संगीन जुर्म में जेल काट कर आया है और अब बाहर आते साथ ही मैंने कहा, वो बुरा है ना, लेकिन इसकी बुराई के पीछे कुछ बातें भी छुपी हुई हैं। आप हीरो भाई इसके जेल काटने की बात कर रहे हैं। लोगों की नज़र में एक बड़ा जुर्म है, लेकिन हम जानते हैं और ख़ास तौर से मेरा भाई राशिद जानता है कि ये जुर्म कैसे हुआ। वो बताना चाह रही तो हिचकिचा भी रही थी। आखिर इमरान की बेलौस हमदर्दी ने इसे बोलने पर आमादा कर दिया। आहें भरते हुए लरसा आवाज़ में से जो कुछ बताया वो चश्म कुशा था। इसके भाई राशिद की माजूरी और बीमारी के पीछे एक छोटी सी पुरदर्द कहानी थी। वो छत से फिसल कर नहीं गिरा था। इसने सख्त डिप्रेशन और मायूसी के आलम में खुदकुशी की कोशिश की थी। कॉलेज के दौर में एक परी चेहरा लड़की की जुल्फे गिरा का असीर हुआ। इसके बगैर जीना इसे नामुमकिन नजर आने लगा, लेकिन अपने इश्क में अकेला था। वो तो हर जाई थी, फूल फूल मंडराने वाली तितली। सोशल मीडिया पर अपने हुस्न के लिश्कारे दिखाकर कई लड़के फांस चुकी थी। राशिद इस अलमी से कतई बेखबर था और जब इसे खबर हुई वो नाकाबिले यकीन सदमा झेल नहीं सका। पहले इस बेवफा से अपनी बर्बादी के शिकवे करता रहा, फिर नशावर गोलियां खाई और छत से कूद गया। इसकी बदकिस्मती ने इसे जिंदगी और मौत के दरमियान लटका दिया। उस लड़की का नाम शमसा था, वही शमसा जो बादशाह कमांडो के गजब का शिकार हुई। दूसरी तरफ कमांडो और सूफिया वाला मामला भी चल रहा था। कमांडो सूफिया का मोहल्लेदार ही था। सूफिया इसको अच्छी लगती थी, इसे ताकता था और आहें भरता था, लेकिन यह सब कुछ भी तकरीबन एक तरफा ही था। पढ़ी लिखी शरीफ घराने की सूफिया कमांडो की पेशकदमियों का जवाब कैसे दे सकती थी? वो डरी समी रहती। जब यह राशिद वाला वाक़या हुआ और परिचरा शमसा की बेवफाई से टूटकर राशिद ने जिंदगी खत्म करनी चाहिए तो कमांडो को भी इस बात का दुख हुआ। इसने शमसा की टोल लगाई और उसे मालूम हुआ कि वो तो अपनी खूबसूरती को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती फिरती है। खाते पीते घरानों के कई लड़कों को तबाहाल कर चुकी है। वो इसके दर पे हो गया। इस पर तेजाब फेंकने की धमकियां दी। जब अपने चलन से बाज न आई तो एक ने इसे उठा लिया और दुर्गत बना डाली। शुरू में कमांडो पर इल्जाम भी लगा कि शमसा की इज्जत टूटी है, लेकिन बकौल सूफिया ये सच नहीं था। इस सजा के खिलाफ कमांडो ने हाई कोर्ट में अपील कर रखी थी। इसकी जल्दी रिहाई की वजह भी इस अपील का मंजूर होना था।
अपने भाई की उदास सुनते सूफिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इसके ज़ेरी चेहरे का निकाब तर नजर आ रहा था। रुदात खत्म हुई तो सर झुकाए खामोश बैठी थी। इमरान यकटक इसे देख रहा था। फिर इसने अचानक सूफिया से एक नहायत अहम सवाल पूछ डाला। एक बात बिल्कुल सच बताना सूफिया, क्या तुम भी कमांडो की अपने दिल में जगह रखती हो? मेरा मतलब है उसे पसंद करती हो? चल लम्हे खामोश रहने के बाद इसने नफी में सर हिलाया। भाई मैं जानती हूँ इसकी और मेरी दुनिया अलग है, और ये सच भी है कि मैंने कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। कहने वाले इसके बारे में कुछ भी कहते रहे, लेकिन कराची में इसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो। इमरान ने कहा, लेकिन ये बात भी तो है कि इसकी वजह से तुम लोगों को नकल मकानी करके यहाँ लाहौर आना पड़ा। बस इसका मेरे आसपास रहना, हमारे घर के सामने एक पान शॉप पर खड़े रहना, आते आते मुझे घूरना, ये सब कुछ परेशान कुन था। उड़ाने वालों ने यहाँ तक खबर उड़ा दी थी कि वो मेरा रिश्ता मांगेगा और इनकार पर उठाकर ले जाएगा। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम क्या चाहती हो? वो लर्जा आवाज में बोली, हीरो भाई, वाजिद मिजाज के बड़े सख्त हैं, पुलिस में भी इनकी लंबी चौड़ी वाकफियत है, वो इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं वो कहते कहते खामोश हो गई। सूरत हाल अब काफी हद तक वाज़ेह होती जा रही थी। मेरे दिल में जो बात आ रही थी वही इमरान ने सूफिया से पूछ ली। सूफिया, लगता है तो अपने होने वाले शोहर से कुछ खौफसदा भी हो। अगर ऐसा है तो फिर ये शादी क्यों होने वाली है? एक दो सेकंड के लिए लगा उस बारे में बहुत कुछ कहेगी, फट पड़ेगी, मगर वो फिर अपने स्याह बुर्का के अंदर जैसे तड़प कर और कसमसा कर रह गई। वही तड़प और कसमसा जो हमेशा मशरकी औरत का नसीब रही है। रात के 10 बजे थे। मैं और इमरान कल्टस कार में एक हाउसिंग स्टेज की निस्बतन खामोश सड़क पर मौजूद थे। सड़क की दूसरी तरफ करीबन 10 मरले की कोठी हमारी निगाहों का मरकज थी। इस कोठी से बाहर सुर्ख रंग की एक हुंडा कार मौजूद थी। ये कार वाजिद अहमद ही की मलकियत थी। इस कोठी के बारे में हम सूफिया से ही पता चला था। इसने हमें बताया था कि इसका होने वाला शोहर कभी कभी इस मुजाफाती कोठी में भी एक आध दिन की रिहाइश रखता है। इसने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन इसकी बातों से पता चला कि अक्सर अमीर ज़ादियों की तरह वाजिद अहमद भी इस जगह को तफरीगाह और यशो इशरत के लिए इस्तेमाल करता है। पिछले 10-12 घंटों में वाजिद अहमद के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ। वो एक शरीफ कारोबारी शख्स का करप्ट बेटा था। शोहरत अच्छी नहीं थी, टैक्स के हवाले से इस पर एक दो केस थे। ये भी कहा जाता था कि लेदर जैकेट्स के एक्सपोर्ट के आड़ में वो गैर कानूनी काम भी करता था। हमें उस हाउसिंग सोसाइटी में मुस्कुरा कोठी के सामने खड़े अब 1 घंटा होने को आया था। वाजिद अहमद की कार चूंकि कोठी से बाहर आड़ी तिरछी खड़ी थी, लिहाजा अंदाजा यही था कि वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। हम तभी अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा ले सकते थे। अब तक की तहकीक के मुताबिक हमें पता चल गया था कि कमांडो पुलिस की तहवील में नहीं है। गालिब इम्कान ये था कि वाजिद अहमद इस अपने रकीब इस कोठी में बंद कर रखा है। एन मुमकिन था इसने इस कोठी को इसके लिए निजी टॉर्चर सेल की हैसियत दे दी है। इमरान ने तवील जमाही लेते हुए कहा, चाचू जानी, मुझे तो लगता है कि इस लफंडर ने अंदर जाते ही अलजबरे का कोई तवील सवाल हल करना शुरू कर दिया है। x3+4 x+5 x मनफी, एनर्जी, मास, सुस्ती, मुसावी, लंबी नींद। मेरा मतलब है कोई लड़की शड़की होगी अंदर। अगर ऐसी बात थी तो वो गाड़ी को इस तरह बाहर क्यों खड़ी कर गया? हो सकता है इसे चढ़ी हुई हो। वो अंदर जाते ही अलजबरे के सवाल पर गिर पड़ा हो। वो भौं उचकाकर बोला। बोलते हुए इसका अंदाज बिल्कुल इमरान दानिश जैसा हो जाता था। मैंने कहा, जरा गौर से सुनो। कोठी के अंदर छत पर कोई टैंकी ओवरफ्लो हो रही है। पानी आध पौन घंटे से मुसलसल गिर रहा है। इसे बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? वो ध्यान से मेरी तरफ देखने लगा। चंद सेकंड के अंदर हम निगाहों ही निगाहों में जैसे एक फैसले पर पहुंच गए। मेरे कोट के अंदरूनी जेब में लोडर पिस्टल मौजूद था। गाड़ी को लॉक करके हम दरवाजे पर पहुंचे। बाउंड्री वाल के ऊपर से झांक कर अंदर का जायजा लिया। चहार से पुरस्कार खामोशी तारी थी। इधर उधर देखकर इमरान ने एहतियात से 4 दीवारी बांधी और अंदर जाकर छोटा दरवाजा खोल दिया। मैं भी अंदर चला गया। हम एहतियात से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। पिछले सेन में पानी गिरने की आवाज के सिवा कोई सदा नहीं थी। अंदर कहीं लैंड फोन की बेल मुसलसल बजती जा रही थी। दाखिली दरवाजा खुला था। हम एहतियात से अंदर चले गए। पूरी कोठी में बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर कुछ मध्यम आहटें सुनाई दी। ये बेसमेंट के बंद दरवाजे के अकब से आ रही थी। हम इस बेसमेंट में दाखिल हुए और हक्का बक्का रह गए। जो कुछ नजर आया इस पर यकीन करने में कई सेकंड लग गए। हमने कमांडो को देखा। वो कुर्सी के साथ बड़ी मजबूती से बंधा हुआ था। पूरा जिस्म जख्म था। होंठ सूज कर लटक गए थे। इसके जिस्म पर सिर्फ वही ट्राउजर था जो मुझसे बॉक्सिंग फाइट के वक्त इसने इस कॉम्प्लेक्स में पहन रखा था। तहखाने के शफाफ फर्श पर 2 खूंच का जिस्म नजर आ रहे थे। उनमें से एक वाजिद अहमद का था। इसके करीब इसका एक तनुमन साथी पड़ा था जिसने 2 दिन पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मुझ पर पिस्टल निकाला था। इसे देखते ही अंदाजा हुआ कि इसे गोलियां लगी हैं और वो जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। हम आगे बढ़े तो वाजिद अहमद को भी ज्यादा वजाहत से देखने में कामयाब हुए। वो जख्मी नहीं था, वो मर चुका था। कम अज कम 3 गोलियां इसके सीने और सर में लगी थी। ये जिस मोहलक तैयार की गोलियां थी वही छोटे साइज का जैकल मशीन पिस्टल था जिसकी एक झलक मुझे वाजिद के साथी के पास कॉम्प्लेक्स में नजर आई थी। इस पिस्टल के बैरल पर साइलेंसर भी लगा हुआ नजर आया।
तह खाने के इस सारे मंजरे में सख्ता ज़दा सा कर दिया। कमांडो करा रहा था और खुद को मजबूत रस्सी की बंदिशों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। 2-3 मिनट में हम पर करीबन सब कुछ वाज़ेह हो गया। वाजिद अहमद ने अपने जज्बा रकाबत की करार वाक़ई तस्कीन के लिए इस तहखाने में कमांडो के लिए हुकूमत गाह बना रखा था। यकीनी बात यह थी कि उसे जान से मारता ना भी तो हाथ पांव तोड़कर इबरत की मिसाल बना देता, लेकिन कोई 1-1.5 घंटा पहले इस तहखाने में एक गैर मुतवक्को वाक़या अचानक पेश आ गया। वाजिद अहमद और इसका साथी गयूर अख्तर जब कमांडो को बेरहमी से ज़दकोब कर रहे थे और सिगरेट से दाग रहे थे, अचानक कमांडो अपना दायां सलामत हाथ गयूर की जैकेट के नीचे इसके मशीन पिस्टल तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। बंधे हुए हाथ के साथ ही वो पिस्टल का रुख फेरने और इसका ट्रैगर दबाने में कामयाब हो गया। इसे भी पता नहीं था कि पिस्टल का मैकेनिज्म बरस्ट पर सेट है और ट्रैगर दबाने का नतीजा क्या निकलेगा। पिस्टल चलने वाले एक ही बरस्ट ने वाजिद का काम तमाम कर दिया और उसके कारिंदे को शदीद घायल कर दिया। कब्जे में लेने के बाद हमने नीमजान शाहनवाज उर्फ कमांडो की बंदिशें खोली। इसका टूटा हुआ बाजू भिंडी तोरी की तरह लटक रहा था। वो नाकाबिल रहम हालत में था। मुर्दा वाजिद अहमद के कोट के अंदर इसका सेलफोन मुसलसल शोर बजा रहा था। गाहे बगाहे बेहोश गयूर के सेलफोन की बेल भी होने लगती थी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि कुछ ही देर में इस तहखाने में वाजिद के कत्ल का राज खुलने वाला है। ऐन मुमकिन था कि दूसरा शख्स भी जानवर न हो सकता। मतलब ये था कि ट्रैगर दबने का हतमी नतीजा कमांडो की सज़ाए मौत की सूरत में निकलने वाला था। मेरी निगाहों में सूफे की सूरत आई और मेरे कानों में इसके अल्फाज गूंज गए। इसने कहा था, वो बुरा है लेकिन इतना बुरा नहीं जितना इसे समझा जा रहा है। मैंने और इमरान एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे एक लम्हे में एक फैसले पर पहुंच गए। ऐसे दिलेर फैसलों तक पहुंचने में इमरान दानिश भी फ़कत चंद सेकंड ही लगाया करता था। इमरान ने अपने करीबी साथी जर्री खां को फ़ोन किया कि अपनी गाड़ी लेकर 15 मिनट के अंदर हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे। किसी के यहाँ पहुंचने से पहले हम कमांडो को यहाँ से निकालने का फैसला कर चुके थे। जर्री खां के पहुंचते हम बड़ी तेज़ी और एहतियात के साथ यहाँ अपनी मौजूदगी के सारे सबूत खत्म कर दिए थे। वाजिद का साथी मुसलसल बेहोश था। इसके पेट में 2 गोलियां लगी थी। एक जख्म ज़्यादा संगीन नहीं था। हमने कमांडो को नया लिबास देने और इसे तहखाने से निकालने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए। इमरान ने जर्री खां को फ़ोन पर सब कुछ बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। अब वो कमांडो को कबायली इलाके तक पहुंचाने का जिम्मेदार था। वहाँ कमांडो को रुपोश होने के लिए खुद कोशिश करना थी और उम्मीद थी कि वो ऐसा कर लेगा क्योंकि वहाँ इसका एक पुराना लिंक मौजूद था। जब निडाल कमांडो रुखसत होने लगा तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, शाहनवाज तुम जानते हो हम तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं। इसने जवाब नहीं दिया, बस सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, इसलिए कि अपनी तमाम तर बुराइयों के बावजूद तुमने फाइट एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह अपनी शिकस्त तस्लीम की और तुम्हारे रवैये से हमें ये इंदिया मिला कि तुम अपना वादा निभाओगे और अब कभी किसी भी तरह सूफे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे। इसने सर झुका लिया। चंद लम्हे बाद इसने अपने सर को खफीफ हरकत दी। यह असबाती हरकत थी। इसकी आंख में उमड़ने वाला एक आंसू उसकी झोली में गिरा। कुछ ही देर बाद वो जर्री खां के साथ हाईरूफ गाड़ी में बैठ चुका था और फिर गाड़ी के पहिए चरचराए और वो तेज़ी से रवाना हो गई। हम जानते थे अब हमारा भी यहाँ से निकलने का वक्त है। दूर कहीं किसी पुलिस कार का सायरन सुनाई देने लगा। बेशक सूफिया अपने चाहने वाले आवारा गर्द को कुछ और ना दे सकी थी, लेकिन आखिर में उसकी ज़िंदगी का वसीला तो बन ही गई थी। दूसरी तरफ वो भी जाते जाते इसे एक अंधे कुएं में गिरने से बचा गया था। तहखाने के चमकीले फर्श पर वाजिद अहमद लाश की सूरत में पड़ा था। हम दोनों को ज़हन में सूफिया के भाई राशिद के नहायत महंगे ऑपरेशन के हवाले से सवालात मौजूद थे। इस सिलसिले में इमरान तहैया कर चुका था कि वो इस काम को आसान बनाने की भरपूर कोशिश करेगा और मुझे पता था कि वो ये कर लेगा।